students, today we will discuss about algae, its type according to color and types of life cycle. Algae, you know that it is an aquatic organism. It is filamentous and reproduced by asexual reproduction. It is of various color. First one is red algae. Rhodophyta group is known as red algae due to presence of a chemical R-phycoerythrin. It has 500 species all over the world and it is mostly marine. It is used as food and the most important product obtained from it is agar-agar, which is used as food as well as used in medicine and cosmetic. Next one is your brown algae. The group of Phaeophyta is called brown algae due to presence of fucoxanthin. It is brown in color. It is also marine and the product obtained from this is alginic acid, which is used in various chemicals. Next one is your green algae. Green algae is green due to presence of chlorophyll A and B, means maximum इनमें क्या present होता है chlorophyll A और B, और ये mostly fresh water में पाई जाती है. इसे एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है. और जो क्लोरेला है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्गी है जिसे स्पेस रिसर्च में जो साइंटिस्ट है वो एज अ फूड यूज़ करते हैं और ये रिच सोर्स है प्रोटीन का. नाउ टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल. फर्स्ट वन इज हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. In this type, the main plant body is gametophyte and bear haploid gametes in the gametangium. The gamete fuse to form zygote, which is the only diploid stage present in this type of life cycle. These zygote that undergo meiosis and produce number of spores or haploid gametes. This one is the haplontic phase in which the gametophyte is present, which undergo gametogenesis, means gamete formation occur here. Two type of gamete are produced which undergo fusions. In game means fusion, produce zygote which is diploid. This zygote is undergo meiosis and produce number of spores. This one is the haplontic life cycle. Next one is the diplontic life cycle. In this gametophytic phase is very small or diploid phase is too large. First, the gamete is produced which undergo fusion, produce zygote. Zygote produce sporophyte which is also diploid, means 2n. It undergo meiosis and then produce number of spores or haploid gamete. And the next one is haplodiplontic, means इसमें दोनों phases हैं, haploid भी है और diploid भी है. Haploid कब होगा? जब gametogenesis होगी, means gamete formation होगा, वो fusion करेंगे, zygote बनाएंगे. zygote से diploid sporophyte बनेगा जो meiosis करेगा और number of spores produce करेगा. So this half cycle is haploid and this one is diploid. So it is known as haplodiplontic life cycle. Then we have a small term before starting the kingdom Animalia. Body symmetry means उनकी body का बनावट कैसी है, वो क्या कहलाती है? Body symmetry. It may be of two type, radial and bilateral. रेडियल में क्या होता है? देखो, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी एक्सिस से काटेंगे तो आपको दो मिरर इमेज दिखाई देंगी उसकी, तो वो क्या कहलाता है? रेडियल सिमेट्री. बायलैटरल में क्या है? ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन ओनली वन प्लेन. सिर्फ एक प्लेन से जब आप काटोगे तो आपको वो डिवाइड होके टू इक्वल पार्ट्स में मिलेगा और वो दोनों भी क्या होंगी? आपस में मिरर इमेज होंगी, तो वो क्या कहलाता है? बायलैटरल सिमेट्री. देन आता है बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी का मतलब स्पेस है. बॉडी के अंदर जो स्पेस है उसे बोलते हैं बॉडी कैविटी. इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. इट इज ऑफ थ्री टाइप, एसिलोमेट, सिलोमेट एंड सूडोसिलोमेट. एसिलोमेट वो होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती. सारा जो स्पेस है, तीन जर्म लेयर होती है जो ये बॉडी कैविटी बनाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. इसमें जो मेसोडर्म है वो सारा स्पेस अपने आप कवर कर लेती है, यानी कोई खाली स्पेस नहीं बचता जिसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हो, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? एसिलोमेट. सिलोमेट वो होते हैं जिनके अंदर एक प्रॉपर बॉडी कैविटी होती है, यानी ट्रू बॉडी कैविटी होती है, जिनके अंदर तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. एंड सूडोसिलोमेट आर दोज ऑर्गेनिज्म इन विच एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज प्रेजेंट बट mesoderm is present in small patches at some places. So all these are about the three type of body cavity and two type of symmetry.
Next, we will start the kingdom Animalia, and the first phylum is Porifera. Porifera, as the name indicates, it is the pore-bearing animal. Pori means pore-bearing animal. These are include mostly soft body animals such as your sponge, which are present in aquatic body. These are mostly marine or maybe in fresh water like Spongilla. They are sedentary in nature, means अपने आप को surface पे attach करके रखते हैं. इनके जो बॉडी होती है उस पर बहुत सारे स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं ओस्टिया, और एक बड़ी ओपनिंग होती है ऊपर के साइड, उसे बोलते हैं ओस्कुलम, जिसके थ्रू ये जो एक्सचेंज है वाटर का और फूड का वो सब प्रोसेस करते हैं. देन इट इज़ द ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शोन इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, और जो इनकी कोलर फॉर्मिंग सेल है उन्हें कोएनोसाइट्स बोलते हैं. रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से ही होगा डिफ्यूजन के थ्रू, and mode of reproduction is asexual and sometimes sexual with the formation of gamules. इनमें सबसे ज़्यादा पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, मीन्स कोई भी इनका पार्ट अगर टूट जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं. ऑल द स्पंज आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप सच एज योर स्पोंजिला, यू स्पोंजियो, यू स्पोंजिया, यू प्लेक्टेला, all are comes under this type of phylum. Then the next one is your Coelenterata. Coelenterata are those organism which has hollow body. अंदर से मतलब उनकी जो बॉडी होगी वो खाली होगी. These are mostly aquatic and marine such as your Hydra. It may be solitary means single भी हो सकते हैं, multicellular होते हैं, और finger like projections present होते हैं इनकी बॉडी पे जिन्हें tentacles बोलते हैं. इसकी वजह से ये डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं, यानी टेंटिकल्स का यूज़ किया है डिफेंस मैकेनिज्म शो कराना. रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से ही होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग. देन द नेक्स्ट वन इज योर प्लेटिहेल्मिन्थेस. These are mostly flatworm. These are free living, may be found in fresh water as well as marine water. Respiration by body surface and excretion के लिए इन्हें स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जिन्हें फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं. डाइजेस्टिव ट्रैक अगर हम देखें तो उसमें माउथ प्रेजेंट होता है लेकिन एनस एब्सेंट होता है, और इनके अंदर सकर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये जो अपना फूड है या अपनी बॉडी को किसी होस्ट के ऊपर अटैच कर सकते हैं. नर्वस सिस्टम वेल डेवलप था, यहाँ पे ब्रेन बनना शुरू हो गया था. सर्कुलेटरी सिस्टम अंडर डेवलप है, और रिप्रोडक्शन अगर देखें तो ये हर्मेफ्रोडाइट है, यानी दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया. नेक्स्ट वन इज नीमाटोडा. इसे एस्के हेलमेंथीज भी बोलते हैं. इनमें मोस्टली राउंड वॉर्म आते हैं, और ये पैरासाइट है और फ्री लिविंग है. बॉडी जो है इनकी बाहर से टफ होती है, सीलिया एब्सेंट होते हैं इनमें. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ है, एनस भी है. रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है. सेक्स सेपरेट है, मीन्स दीज आर यूनिसेक्सुअल. नेक्स्ट वन इज योर एनिलिडा. एनिलिडा, these are those organism which has segmented body. These are mostly found in every places. soil में भी मिलते हैं, fresh water में भी मिलेंगे, sea में भी मिलेंगे, और इनमें से कुछ एज अ पैरासाइट भी बिहेव करते हैं सच एज योर लीच. ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है. ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है इनके अंदर. बॉडी सेगमेंटेड है. ब्लड क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, और रेड कलर का है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. बट आरबीसी इनके अंदर एब्सेंट होती हैं. एक्सक्रीशन जो होगा वो नेफ्रीडिया से होगा. रेस्पिरेशन या तो गिल से होगा, कुछ केसेस में बॉडी सरफेस से भी होता है मॉइस्ट स्किन के थ्रू. लोकोमोशन के लिए इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें पैरापोडिया बोलते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो ये कुछ केसेस में यूनिसेक्सुअल भी हैं, और कुछ इनमें से बायसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट भी होते हैं. नेक्स्ट वन इज आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं, और ये लार्जेस्ट फाइलम है आपके किंगडम का, और इसमें अबाउट 90,000 स्पीसीज प्रेजेंट है. इसमें मोस्टली इंसेक्ट आते हैं आपके. ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी होते हैं, कुछ मैराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ पैरासाइट की तरह भी बिहेव करते हैं. और इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन. इनकी जो बाहर की लेयर है कुछ केसेस में वो चिटिन की बनी होती है, और इनकी जो बॉडी कैविटी है उसे हीमोसील बोलते हैं. माउथ प्रेजेंट है फीडिंग के लिए, टीथ,
टाइप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं शकिंग, बाइटिंग, पर्चिंग के लिए। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। रेस्पिरेशन कुछ केस में गिल्स के थ्रू होता है, कुछ में ट्रेकिया के थ्रू जैसे कॉकरोच, और कुछ में बुक लंग्स के थ्रू जैसे कि स्कॉर्पियो। और इनमें कंपाउंड आई प्रेजेंट थी। एक्सक्रीशन होता है स्पेशल स्ट्रक्चर से जिन्हें बोलते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। और 6 इनमें सेपरेट है, 6 आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इन इंटरनल एंड दीज आर ओविपेरस, मीन्स ये अंडे देते हैं। All the insects such as your butterfly, housefly, cockroach all comes under this type of group. Next one is your mollusca. These are soft body animal. It is the second largest phylum. इनकी जो बॉडी कैविटी है उसे हिमोसील बोलते हैं। और इनकी बॉडी के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी होती है जिससे किस चीज़ की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, यानी बाहर से हार्ड होती है और अंदर उनके एक सॉफ्ट सा एनिमल प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। लोकोमोशन मस्कुलर फुट के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन थ्रू या तो स्किन से होगा या लंग्स से होगा। सर्कुलेशन ओपन है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। एक्सक्रीशन मेटानेफ्रीडिया के थ्रू होगा या किडनी के थ्रू होगा। और सेक्स इनके अंदर भी क्या है, सेपरेट है। एंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज पाइला, ऑक्टोपस एटसेट्रा। Next one is Echinodermata. It include those animal which has spines, कांटे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनकी बॉडी पे। ये मोस्टली मेराइन होते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं यानी ग्रुप में रह सकते हैं, कुछ पेलेगिक होते हैं यानी फ्री स्विमिंग करते हैं वाटर के ऊपर, कुछ बेंथिक होते हैं यानी कि बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, बॉटम में रहते हैं पानी के, कुछ सेसाइल होते हैं यानी कि अपने आप को सबस्ट्रेटम पे अटैच करके रखते हैं। ये स्टार लाइक या डिस्क लाइक शेप के हो सकते हैं, कुछ फ्लावर शेप के भी हो सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और जो इसका एंडोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हेड इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ये ओरल या अबोरल सरफेस होता है इनकी बॉडी का। और इनके अंदर एक वाटर फील्ड सिस्टम होता है जिसे वाटर वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। लोकोमोशन के लिए इनके अंदर ट्यूफिट प्रेजेंट होते हैं जो लोकोमोशन का भी काम करते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैस का भी काम करते हैं। सेक्स इनके अंदर सेपरेट है, एक्सक्रीशन एब्सेंट है और इनमें पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे ज़्यादा होती है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज योर स्टारफिश। कोर्डेटा, वर्टिब्रेटा। कोर्डेटा में कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर एक बैकबोन लाइक, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होगा उनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, वो कौन से होते हैं, कोर्डेटा। ये बहुत सारे सब फाइलम में डिवाइडेड हैं, ये सब क्लासेस में डिवाइडेड है जैसे प्रोटोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा एटसेट्रा। द नेक्स्ट वन इज योर वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्या होंगे, वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सेगमेंटेड बॉडी होगी। इनमें टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है और इनके अंदर जो नोटोकोड है वो रिप्लेस हो जाती है एक वर्टिब्रल कॉलम से यानी एक बैकबोन लाइक स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट वन इज योर पाइसेस। पाइसेस में क्या आती हैं, जो भी जितनी भी आपकी फ़िश हैं वो सारी पाइसेस के अंदर आती हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, वाटर में रहती हैं, कुछ फ्रेश वाटर की होती हैं, कुछ मेराइन वाटर की होती हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है इनके अंदर और ये एग ले करती है यानी ओविपेरस होती है। अब ये 2 टाइप की हैं, एक होती है बोनी फिश, एक होती है कार्टिलेजिनस फिश। जो आपकी बोनी फिश होती है उन्हें ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं और जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उन्हें कोंड्रोसाइट्स बोलते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ बोनी फिश, दीज आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। एयर ब्लैडर प्रेजेंट है जो इन्हें पानी में तैरने में हेल्प करते हैं यानी एक बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है। एग ले करती है, ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और ये अमोनिया सिक्रीट करती है। देन कार्टिलेजिनस फिश, इन्हें कोंड्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ये मोस्टली मेराइन होती हैं और जो इनका एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। जो एक्सोस्केलेटन है वो पेलागोइड स्केल्स का बना होता है, उनमें 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं और गिल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है यानी जो ओपरकुलम होता है वो नहीं है इनके अंदर। लोकोमोशन फिन के थ्रू होता है, इनमें भी 2 चैम्बर्ड हार्ट है, वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल है इनके अंदर और ये यूरिया सिक्रीट करती हैं। Then the next one is your amphibia. Amphibia features, these may be in water animal or land animal and water is necessary for complete their life cycle. आइज के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। रेस्पिरेशन या तो गिल से होगा या स्किन से या लंग से। जो हार्ट है इनके अंदर वो 3 चैम्बर्ड होता है यानी 2 यूरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा।
सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और ये मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, यानी एडल्ट बनने की जो प्रोसेस है लार्वा से या टेडपोल से वो। एंड दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जितने भी आपके फ्रॉग हैं, सेलेमेंडर हैं, चैमिलियन है, वो सब इस ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट वन इज रेप्टिलिया। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? जो रेंग के चलते हैं। रेप्टिलिया ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, बॉडी जो है इनकी वो कवर्ड होती है स्केल्स के थ्रू, एंड टीथ प्रेजेंट होते हैं कुछ केसेस में, और कुछ केस में ऐसे ये पॉइजनस केमिकल सिक्रीट करने का काम भी करते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। हार्ट जो है इनका वो 4 चैम्बर्ड है। दीज आर ऑल्सो शो fertilization which is internal and lay egg. They may be carnivorous, insectivorous, etc. All the type of snake, lizard are comes under this type of group. Next one is your aves. Aves में जितने भी आपकी birds हैं, peacock है, pigeon है, कुछ कोई भी bird है, वो सारे किसमें आते हैं? aves के अंदर। ये warm blooded animal होते हैं। इनका जो exoskeleton है वो feathers का बना होता है, पंखों का बना होता है। बॉडी जो है इनकी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है, और इनके जो बोन है अंदर से वो खाली होती है, उसे बोलते हैं न्यूमेटिक बोन, और इनमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं सैरिंग्स। वेल डेवलप्ड लंग्स प्रेजेंट है, यानी जो रेस्पिरेशन होगा इनके अंदर वो लंग्स के थ्रू होगा। हार्ट 4 चैम्बर्ड है, और ये यूरिक एसिड सिक्रीट करती हैं, तो इन्हें इसलिए यूरिकोटैलिक बोलते हैं। सेक्स जो है इनमें वो सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और ये भी कैसी हैं? ओवीपेरस है, और इनके अंदर पेरेंटल केयर देखी जाती है। एंड द लास्ट वन इज योर मैमल्स। मैमल्स में जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, योर एनिमल, ऑल कम्स अंडर मैमल्स। ये मोस्ट एडवांस हैं, वार्म ब्लडेड हैं, बॉडी कवर्ड है हेयर से, और स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है इनके अंदर। इनमें भी जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स के थ्रू होगा। हार्ट 4 चैम्बर्ड है, एक्सक्रीशन थ्रू किडनी, सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और ये विविपेरस है, यानी ये बच्चे देते हैं, और इनमें जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं बच्चों को फीड कराने के लिए। जितने भी आपके एनिमल्स हैं, कंगारू, रैट, रैबिट, डॉग, ह्यूमन बीइंग, monkey, all these comes under this phylum. So this one is all about the unit 1. Here we have completed all type of phylum, all type of your plants phylum as well as animal phylum. So this one is all about your unit 1. Then we will start unit 2, morphology of flowering plant. Thank you.